make presentation. Yeah. Namaskar. Good morning, everyone. In this induction meeting of certificate program in yoga. So, in this induction meeting, we have invited our regional directors. Here, I can see regional center Agartala has joined. Regional centers, our academic counselors. So, many of the academic counselors I do not know personally, but I would like to welcome all of you. And I also would like to welcome all the students who joined in this batch. All students are requested, please mute yourself again. If you have any queries in this program, please write on your chat box. So after the presentation is over, I can try to reply all of you. And we are also having on board Dr. Simarani Yadav. She is our academic consultant and helping in this program. So I try to make a presentation. So just let me know if the presentation is visible. Is the presentation visible? No, sir. Not visible. Okay. Yeah. Please mute yourself. Yeah. This is not still coming. I'll try. I think there is some technical issue. Yeah. Now is my screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, it is visible to all. Yeah. So this PowerPoint presentation also must be visible to all of you, I hope. Yes, sir. Yeah, visible, sir. Visible. Yeah. Now we'll start the presentation. So this is the induction program of the certificate program in yoga. Yeah. So the yoga program was basically designed because of the need of this program, and you know that yoga is the integral part of life, and it is required for every one of us. Every one of us. Please mute yourself. And yoga was ignored for a long period of time for many of us, but recently we try to revive and try to integrate in our life. So the basic program, basic objective of this program is to bring this concept and practice of yoga. Please mute yourself. So it's better if you mute everybody so that we can listen properly. Please. If you can see, once I open my PPT, I cannot go and mute yourself. Please, if you are keep making background noise, I cannot proceed further. You have to be disciplined, and particularly you are in a yoga. Thank you. So the basic objective of this program is to make this yoga. I think it will be very difficult if you make this kind of sound. And if I go back, then again, this entire presentation will be interrupted. So please
behave, maintain some discipline. Yeah. So the basic purpose of yoga is to bring this yoga to everyone in this. I think there is a huge problem. Sir, it is Babita only जिन्होंने अपना mic off नहीं किया हुआ, बाकी सबका off है. Sir, if it is possible, please speak in Hindi also so everyone can understand. हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा. Excuse me, sir. Please speak in English. I can't understand Hindi. Yeah, I try to speak in both. We have a please, different kind of person. Yeah. There are many person who cannot understand English. In the same time, there are many person who cannot understand in Hindi. Yes, so sir. I try to speak in both so that you can understand. Thank you, all sir. of you Thank can you. understand. So basically, जो योगा का हमारा ये प्रोग्राम का मकसद है कि योगा को हर इंसान तक लेके जाना है. The basic objective of this program is not to create a job. So many people will ask कि ये प्रोग्राम करने के बाद मुझे क्या जॉब मिलेगा, क्या मुझे स्कूल में टीचर की जॉब मिलेगा, can I get a job as a yoga trainer? Our simple answer is no. This program was never designed for the job oriented. However, ये जॉब करने के बाद आप लेवल 2 योगा सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं and it will be very easy for you to get a job with the Yoga Certification Board Level 2 examinations. The objective of this program is आपको योगा की हिस्ट्री और वेरियस योगीज के बारे में बताना, एक कॉम्प्रिहेंशन बेसिक प्रिंसिपल्स योगा के ऊपर जानना और वेरियस जो आपका प्रोटोकॉल है योगा प्रोग्राम की उसको डेमोस्ट्रेट करना एंड डेमोस्ट्रेट योगा प्रैक्टिस for the prevention of disease and adoptions of the yogic lifestyle and develop a holistic approach for this as per the guideline of yoga. There are many people जो ये बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग, कि योगा मतलब सिर्फ आसन है, लेकिन ऐसा नहीं है. योग this आसन contribute only 10 to 15 or maximum 20% of the entire yoga, but the yoga is something which is your complete lifestyle. For example, your thoughts, आपका सोच, आपका विचार, आपका जो एक्शंस, सब कुछ आपका योगा के हिसाब से होता है. आपने आसन तो बहुत कर लिया, लेकिन आसन से जैसे ही बाहर निकल के आए सोचते रहे कि उसका गाड़ी मेरे गाड़ी से कैसे अच्छा ज्यादा है, तो फिर आपका योगा जो आपके मन में जो ये सोच है वो आपका योगिक गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है. तो इसलिए योगा मतलब आपका सिर्फ आसन नहीं है. सो योगा इज द कंप्लीट लाइफ. इट इज नॉट ए वन पर्टिकुलर आसन. Eligibility, all of you know, all 12 pass students can join this program, and it is a 6-month certificate program, but you can complete within the 2 years durations. Program fee was 5,000 rupees. In this program, we have a 2 theory course and 1 practical course. This is the course code BYG001 and BYG002 for theory and BYGL001 जो है वो प्रैक्टिकल के लिए है. आपको जब भी यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेट करना है तो आपको बेसिकली आपका एनरोलमेंट नंबर लिखना है, प्रोग्राम कोड लिखना है जिसका CPY है, कोर्स कोड लिखना है जिस कोर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपका रीजनल सेंटर के बारे में आपको लिखना है, कौन से रीजनल सेंटर है, आपके स्टडी सेंटर के बारे में लिखना है जो कि आपके स्टडी सेंटर है. देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई यू. अदरवाइज हम आपको नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमारा डिस्टेंस एजुकेशन का जो
स्टूडेंट को पहचानने का तरीका है वो आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, कोर्स कोड से ही हम पहचानते हैं। और जो आपका थ्योरी कोर्स है उनका क्रेडिट है 4, 1 क्रेडिट इक्वल टू 30 आवर्स ऑफ स्टडी, एंड जो आपका प्रैक्टिकल कोर्स है दैट इज 8 क्रेडिट, एंड टोटल क्रेडिट ऑफ दिस प्रोग्राम इज 60. In a first book, that is in a BYG 001, there are 4 blocks. Means जो कोर्स के अंदर बुक होते हैं उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, और ब्लॉक के अंदर जो चैप्टर होते हैं उसको हम यूनिट बोलते हैं। तो आपकी बेनिफिट के लिए हमने चारों ब्लॉक को एक बुक में कन्वर्ट करके आपको एक कोर्स का एक बुक दिया। तो ऐसे ही आपके पास, जैसे कि ये मेरे पास है, आप देख सकते हैं, ये जो बुक है दिस इज कोर्स 1 जिसमें 4 ब्लॉक है। ऐसे ही जो BYG 002 योगा एंड हेल्थ में 4 ब्लॉक है, और जो हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है उसमें एक प्रैक्टिकल मैनुअल और एक लॉग बुक है। अभी अगर देखा जाए तो हमारा जो ब्लॉक के अंदर बहुत सारा यूनिट्स है। हमारा ब्लॉक जो फर्स्ट कोर्स के अंदर टोटल 18 यूनिट्स है, जो फर्स्ट ब्लॉक में हमारा 4 यूनिट है, मतलब 4 चैप्टर है। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो हमारा 4 यूनिट है। ब्लॉक 2 में हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योगिक टेक्स्ट, जिसमें हमारा 5 यूनिट है, मतलब 5 चैप्टर है, और ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से लिखा है। आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट है, प्लीज रीड ऑल दिस यूनिट्स वेरी केयरफुली, and lots of informations and lots of things are given in this block. Block 3 comprise with 4 units, unit 10 to unit 13. Here we are talking about the contributors of the yoga, all yogis, and how they have contributed in the field of yoga. Sorry. Block 4 is talking about the concept of fundamental yogic terminology, like it says the 5 different unit, and once you read this block, this is giving you the fundamental concept of yoga in different dimensions. In the course 2, that is BYG 002, we are having again 4 different blocks, and first block is having 4 units. यहाँ पे हम शरीर की बारे में बात कर रहे हैं कि क्या आप शरीर, मानव शरीर के साथ है, तो शरीर में आपका डिफरेंट सेल, टिश्यूज, आपका डिफरेंट नर्व सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में आपको बताया जाता है। आपके ब्लॉक 2 में योगिक कॉन्सेप्ट हेल्थ से कैसे रिलेटेड है वो बताया जाता है 4 डिफरेंट यूनिट में। आपका योगा का जो 3 ब्लॉक है उसमें आपका योगा एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको साइकोलॉजी से कनेक्ट करके बताया जाता है कि आज के दिन में स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, योगिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेंटल हेल्थ कैसे होना चाहिए उसके ऊपर बताया जाता है। एंड जो ओवरऑल आपका जो दिनचर्या, ऋतुचर्या कैसा हो, एंड फूड कैसे लेना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी लिविंग कैसा होना चाहिए, वो सब हम बताते हैं। हमारा जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है, प्रैक्टिकल यूनिट्स में हमारा 7 डिफरेंट यूनिट्स है प्रैक्टिकल मैनुअल्स में, जिसमें आपका मेडिटेशंस होते हैं, संधि चालन होता है, लूजनिंग एक्सरसाइज, देन क्लींजिंग प्रैक्टिस होते हैं, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंदा, ये सब होते हैं। तो आपको ये डिटेल्ड कैसे करते हैं वो बताया गया है। देन नॉर्मली हमारा प्रैक्टिकल जो प्रोग्राम होते हैं वो फेस टू फेस मैनर में हमारे पास 12 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होते हैं। There are 12 days you need to go for this practical training. All these dates of the practical training will be announced by the study center or regional center. हम यहाँ से डेट एग्जैक्टली नहीं बताते हैं क्योंकि we are having regional center at East Jorhat, like Jodhpur, Kashmir and Chennai. So every regional center अपने हिसाब से डेट ठीक करते हैं और उसको स्टूडेंट को इन्फॉर्म करते हैं।
If you visit the regional center website, you can also find the schedule of the training. And all students are requested to keep connecting to your study center for this practical training. If you ask me, I'll directly say, I do not know. This date will be announced by the study center. 100% attendance is mandatory in the practical to be eligible in the term and practical examinations. आपको अगर प्रैक्टिकल में आप आधा करते हो तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, तो इसीलिए आपका 100% अटेंडेंस आपको चाहिए प्रैक्टिकल एग्जाम में अपियर होने के लिए। ये हमने एक्चुअली प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिजाइन किया कि पहला दिन कैसा होना चाहिए, सेकंड डे में कैसा होना चाहिए, आपका सिटिंग आसन, स्टैंडिंग आसन, प्रोन आसन कैसा होना चाहिए। लेकिन ये एक सिर्फ एक मॉडल गाइडलाइन है। हर रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर अपनी हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारा रीजनल सेंटर जो होता है वो सैटरडे संडे को करते हैं, बहुत सारा रीजनल सेंटर मतलब वर्किंग डे में भी करते हैं। तो डिपेंड करता है कौन से रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर किस दिन को चूज करते हैं। तो ऐसे करके हमारा डे वाइज काफी होते हैं। तो ऐसे ही हमारा सेकेंड कॉन्टेक्ट सेशंस भी जिसमें होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेकंड कॉन्टेक्ट सेशंस में आपको मुद्रा, बंदा या फिर प्रेयर सिखाएगा। हो सकता है कि वो पहला कॉन्टेक्ट सेशंस में ही, पहला 6 दिन में ही आपको सिखाए। वो सब स्टडी सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। और आखिरी दिन जो लास्ट डे ऑफ द 12th डे होता है, उसमें आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। जो थ्योरी आपने असाइनमेंट जैसे लिखते हैं उसका आपका इंटरनल असेसमेंट, ऐसा ही 6th डे में आपका इंटरनल असेसमेंट होते हैं जो कि आपका असाइनमेंट की तरह काम करता है। जो डे 11th होता है उसमें सारा रिवीजन एक्टिविटी होता है। रिवीजन इसलिए है कि अगर आपको किसी भी आसन के ऊपर, कोई भी प्रैक्टिकल सेशंस के ऊपर आपको अगर और पता करना है, अगर आपको और कुछ जानना है, तो आपको ये 11th डे को हम रिवीजन के हिसाब से यूज करते हैं। अभी आपका मन में ये डाउट होगा, तो हम स्टडी सेंटर में जाएंगे तो कौन सिखाएगा हमको ये योगा। तो हमने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करके रखा है वो है कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो बोर्ड है वो लेवल 2 पास होना चाहिए मिनिमम, या फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए योगा में, या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए। तो आपको जो भी जो योगा सिखाने आएगा आपका स्टडी सेंटर में वो हाईली क्वालिफाइड पर्सन होगा। तो इसके ऊपर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। देन योर स्टडी मटेरियल, I hope all of you have received your study material. If you have not received your study material, you can visit to this IGNOU website, and this is the MPDD divisions. There you can find the status of your study material by putting your enrollment number. Or else if you have any problem, write to the register mpdd@ignou.ac.in for this study material purpose. Assignment. Many of you are having lots of questions about the assignment, but assignment is need to be submitted to the study center or regional center. New assignment need to be given in every 6 months. अगर आपने इस सेशन से मान लीजिए किसी कारणवश, या फिर आपको कोई काम है, या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप इस बार नहीं कर पाते, तो अगला 6 महीना दैट इज जुलाई सेशन में आपको नया असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। अभी जो आधा लिख के रखा है वो काम नहीं आएगा। असाइनमेंट ऑफलाइन या ऑनलाइन सबमिट हो सकता है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टडी सेंटर, जिसके लिए हम यहाँ से हेडक्वार्टर से बताते नहीं है कि आपको कैसे असाइनमेंट सबमिट करना है। वो उसका इंस्ट्रक्शन आपका रीजनल सेंटर से आएगा। जो लास्ट डेट होता है वो हमने एक अप्रोक्सीमेटली डाल रखा है, लेकिन टाइम टू टाइम वो यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन चेंज होता रहता है। तो आपको यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन के हिसाब से आपको लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशंस का देखना है। अगर आपको लगता है कि असाइनमेंट का आपका मार्क्स आपने जमा कर दिया लेकिन 6 महीने हो गया, मार्क्स अपडेट नहीं हो रहा है, तो आपको स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर को ही उसके लिए कांटेक्ट करना है। ये बात मैंने पहले बताया कि आपको हर 6 महीने में नया असाइनमेंट मिलेगा। सबमिशंस के बारे में भी बताया, आपको स्टडी सेंटर में सबमिट करना है। अपडेट्स नहीं हुआ तो कांटेक्ट करना है रीजनल सेंटर को या स्टडी सेंटर को।
सॉरी, अभी जो असेसमेंट है, स्टूडेंट कैन बी असेस्ड बोथ इन थ्योरी एंड इन अ प्रैक्टिकल। दोनों चीज का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, टारमेंट असेसमेंट होता है, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जो इंटरनल असेसमेंट है थ्योरी की, वो आपकी असाइनमेंट फॉर्म में होता है। You are writing assignment, this is, and once it will be evaluated, it is one kind of assessment. The term examinations will be appeared in the month of June और जुलाई, जिसके लिए ऑलरेडी डेट्स आपको बताया गया है इग्नू वेबसाइट में, आपका प्रोविजनल डेट्स गिवन, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। एंड प्रैक्टिकल असेसमेंट जो होता है आपका सेंटर कंडक्ट करता है टर्म एग्जामिनेशन के रूप से, जिसके लिए आपको स्टडी सेंटर से नोटिस आएगा आफ्टर यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। जैसे थ्योरी कोर्स में आपका जो 30% वेटेज है वो आपका असाइनमेंट से आएगा, और जो 70% वेटेज है वो आपका आएगा टर्म से। दोनों केस में 50% मिनिमम स्कोरिंग इज मैंडेटरी टू कंप्लीट द प्रोग्राम, टू कंप्लीट द कोर्स। 50% आपका पासिंग मार्क्स है, ओके आपका प्रैक्टिकल में, लेकिन आपका 50% वेटेज जो होता है वो इंटरनल में भी आता है और 50% वेटेज आपका टारमेंट में आता है। तो इसीलिए इसमें भी आपका पासिंग मार्क्स जो होता है 50% होते हैं। तो अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होते हैं और आप 40 मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपको पास नहीं माना जाएगा। You have to score minimum 50% to pass the exam. यही चीज मैं बताया अभी। जो इंटरनल असेसमेंट है 30% वेटेज होता है, हर कोर्स में एक आपको असाइनमेंट करना होता है और 50% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए। आपका टारमेंट जो असेसमेंट होता है उसमें 70% असेसमेंट वेटेज होता है। साल में, हर साल में 2 बार होते हैं, जैसे अभी जून में होगा। अगर आप जून में एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो आपको दिसंबर में कर सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है, जैसे आपका 2 थ्योरी कोर्स है सॉरी, जिसमें आपका 2 थ्योरी कोर्स है, लेकिन अगर आप अभी सोचते हो कि मैं तो सिर्फ एक थ्योरी कोर्स ही एग्जाम में लिखूंगा अभी और दूसरा थ्योरी कोर्स में दिसंबर में लिखूंगा, यह भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि अभी आपने सिर्फ असाइनमेंट जमा किया और आप एग्जाम दिसंबर में देने के लिए तैयार है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन असाइनमेंट पहले जमा करना है, बिना असाइनमेंट दिए आप टारमेंट में अपियर नहीं हो सकते हैं, ये इग्नू की रूल है। हो सकता है कि अभी आपने असाइनमेंट दे दिया हो, आपने दिसंबर में भी एग्जाम नहीं लिखा, अगला साल की जून में आप लिखने की है, वो भी हो सकता है। अभी आपने असाइनमेंट जमा किया, इस बार एग्जाम जून में नहीं लिखा, दिसंबर 2024 में आपने एग्जाम लिखा, सॉरी आपने जून 2025 में एग्जाम नहीं लिखा, आप दिसंबर 2025 में लिख के आप खत्म कर सकते हैं। आपका वैलिडिटी जो होता है दिसंबर 2025 तक रहेगा, तो वहां तक आप एग्जामिनेशंस करके इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज आर गिवन इन दिस प्रोग्राम। प्रैक्टिकल भी ऐसे ही है। प्रैक्टिकल का पहले ट्रेनिंग करना आपको जरूरी होता है और आखिरी दिन में जो एग्जाम होगा उसको इंटरनल असेसमेंट हम बोलते हैं। तो आप ट्रेनिंग करने के बाद आप कभी भी टारमेंट एग्जाम देके कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा जितना जल्दी आप कर सकते हैं इतना अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है ऐसे वैसे आपका सॉरी ऐसे ही आपका जो कनेक्शंस और इंफॉर्मेशंस वो लेस होने लगते हैं, फिर आपको पता नहीं चलता कि कब एग्जाम हो रहा है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको एज अर्ली एज पॉसिबल प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। ये आपका प्रैक्टिकल का मार्किंग पैटर्न है जो हम पहले से बताते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको 3 सत्कर्मस पूछे जाएंगे जिसमें 25 मार्क्स होते हैं। सत्कर्मस मतलब क्लींजिंग प्रैक्टिस, जल नीति, राबर्ट नीति, भमन, ये सब। फॉर एग्जाम्पल जल नीति में आपका 10 मार्क्स है। आपने एक नाक से
डाल के दूसरा नाक से पानी निकाल दिया और आपने बोला कि मैंने तो करके दिखा दिया। लेकिन इसमें अगर आपका बैठने का पोजीशन सही नहीं है, गोटा पकड़ने का पोजीशन सही नहीं है, गर्दन टिल्ट करने का पोजीशन सही नहीं है, या फिर आपने बाद में नाक सुखाया कि नहीं वो नहीं है, पहले नाक चेक किया कि नहीं वो नहीं किया, तो फिर आपको उसमें 10 मार्क्स में से हो सकता है सिर्फ 1 मार्क मिले या 2 मार्क मिले, क्योंकि हर कंपोनेंट का मार्क्स होते हैं। ऐसे ही हर चीज का अलग अलग मार्क्स। जैसे आपने आसन किया, आपको कल बोला जाएगा आप हंसा आसन करके दिखाइए। आपका स्टार्टिंग पोजीशन से लेके आपने कैसे उस पोजीशन पे गए, फिर कैसे कितना देर होल्ड किया, फिर कैसे वापस आए, और उसके बाद आपने क्या किया, वो सारा चीज छोटे छोटे फॉर्म में आपको ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऐसे ही आपको सारे चीज अच्छे से करना है, एंड आई होप ऑल ऑफ यू कैन डू इट वेरी वेल। आपको लॉग बुक खुद के हाथ से लिखना है। पिक्चर अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर पिक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो आप उसको फोटोकॉपी करके चिपका सकते हैं। यू कैन राइट द लॉग बुक विथ योर ओन हैंड। यू शुड नॉट सबमिट योर लॉग बुक। आपको लॉग बुक सबमिट नहीं करना है, लॉग बुक अपने पास रखिए, एग्जाम के टाइम में उसको दिखाइए और फिर आपको वापस दे देगा आपका एग्जामिनर्स। क्योंकि अगर आप फेल्ड हो जाते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको वो दिखाने की जरूरत पड़ सकता है। तो लॉग बुक जिसने स्टडी मटेरियल एक्वायर्ड किया उसके पास लॉग बुक पहुंचा होगा। जिसने इलेक्ट्रॉनिकली स्टडी मटेरियल मांगा है उनके पास अभी लॉग बुक सॉफ्ट कॉपी में सारा स्टूडेंट को भेजूंगा नेक्स्ट 1 और 2 वर्किंग डेज के अंदर। ठीक है, तो आपको वो प्रिंट आउट लेना है, उसको बाइंडिंग कराना है और उसको लिखना है। वाइवा बोसी में 10 मार्क्स कैरी होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के एग्जाम के अंदर। तो ये आपका मार्किंग पैटर्न हम पहले से बता रहे हैं, आपको ये सब आपको करके दिखाना पड़ेगा। आपको सारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली पढ़ना है। इग्नू वेबसाइट एटलीस्ट हर 15 दिन में एक बार विजिट करना है। आपको इग्नू का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है एज पर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर बहुत अननेसेसरी लिखते हैं तो बहुत सारा लोग जैसा अभी कह रहे हैं कि सिर्फ एडमिन के पास राइट होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता कि सिर्फ मेरे पास राइट होना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग मैच्योर एडल्ट हैं। आप सब लोग योगा के साथ जुड़ रहे हैं। All of you are learning yoga, so you will behave yourself. So that was the reason I was not controlling the WhatsApp group that only admin can post. But if unnecessary messages are keep coming, very soon I will change the admin setting and you will miss the opportunity. You need to fill the exam form online to appear examination in advance. For example, now online exam form you need to submit because if you want to appear examination in the month of June. You also need to, यहाँ पे हमने लिखा है no need to pay exam fee for practical examination। ये पुराना गाइडलाइन के हिसाब से था। अभी की नया गाइडलाइन के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के भी फी सबमिट करना है। As per the new guideline, you need to submit the practical examination fee also. You need to write emails if you need any support. Don't expect everything that I'll solve the issues by WhatsApp, or if you just give me a call I will help you. It is not possible because हमारा बहुत सारा डिविजन्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारा एग्जामिनेशन डिवीजन अलग है, मटेरियल डिविजन्स अलग है, रीजनल सेंटर से बहुत सारा चीज इंप्लीमेंट होता है। तो इस वजह से हम बहुत सारा चीज हम आपको ईमेल में मांगते हैं। जैसे कि आपको अगर टारमेंट थ्योरी एग्जाम अपियर होना है तो आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिल करना है विथ फी। आपको अगर प्रैक्टिकल टारमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपको ये आपका फी सबमिट करना है। द टारमेंट एग्जाम सेंटर यू कैन चूज नियर बाय योर प्लेस, और इफ यू थिंक आप दिल्ली में रहते हो बट एग्जाम टाइम में आप केरला में घूमने जाएंगे तो केरला में भी आप एग्जाम सेंटर चूज करके लिख सकते हैं। बट वंस यू सिलेक्ट द एग्जाम सेंटर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। नॉर्मली वी डोंट चेंज, बट इफ यू डू इट, if you think
that you need some support, you need to write to the registrar, Student Evaluation Division for this purpose. If you want to change your study center, you need to contact to your regional center. If you want to get your material or identity card, you need to write to your regional center. For term and theory examinations, result, if you think result, then you need to write registered scd@igno.ac.in. Result related कोई भी problem हो, you need to write to the SCD registrar for this purpose. अगर आपको एग्जाम हो गया आपका, लेकिन आपको ग्रेड कार्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब आपको रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को लिखना है. आपको ग्रेड कार्ड आ गया लेकिन आपको मेन सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आपको convocations@igno.ac.in को लिखना है फॉर द ओरिजिनल सर्टिफिकेट. तो ये सब हमने आपको प्रोग्राम गाइड के अंदर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया है. आप प्रोग्राम गाइड एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए. There are many information we try to give you inside the program guide. And if you want to have any administrative support, regional center director is there. You contact to the regional director. They may not respond to you over the phone. It is very difficult to respond telephonically everyone. And please do not call me in odd hours like night 10 o'clock or morning 5 o'clock. Please don't call me. You write on this email cpy@igno.ac.in. I myself look into this email and we try to resolve it as early as possible. Thank you very much. This is the presentation from my side. Now I'll go to your chat box and try to respond your queries. And I hope many of you understood this, what I presented. And in this meantime, I request all of you to open your camera so that we can have one group picture. Please don't, no need to speak anything, remain mute, but just open your camera so we can have a group picture. Yeah, I'm coming to the chat box. Please just wait. Let everyone open their camera. Yeah, majority of you have opened. So we'll take one group picture. Yeah. So now I try to read these things. Online course material, people who has opted, I have given you link, eGyan course. From there, you can download all the study material. Logbook will be not available there. The copy of the logbook, I'll send it. Please put me one email for this. Now, if you want to buy the printed course material, you have to come personally, physically to the IGNOU headquarters, to the MPDD. You need to submit money and you can get the book. But you have to pay for this in the form of demand draft. Date sheet of the term and examinations are given in the IGNOU website. Please visit to the student corner of the IGNOU website. There, go to the download, and in the download sections, you get old questions paper. You can get provisional dates of the term and examinations, many things. The practical examinations date will be informed by the respective study center or regional center, because every center, study center have their own independent to arrange the date
as per their convenient. Then Ananya Chaudhary, sir, I also have query about the YouTube channel. Yes, I have sent you one YouTube channel where the recording of earlier practical sessions are involved. You can visualize it. If you have any problem, please write me back. I'll send you the link again. And access, I'll give you the access. Yeah, 1 credit equal to 30 hours of study. Agartala Regional Center has mentioned. Thank you very much. YouTube that was provided, keep showing. It's okay. When I enrolled in this program, I chose Study Center of Bangalore. After this several attempt connect to these things not active in this program, then I request you to change the service. Yeah, Swati Sahu, please contact to the Regional Center Bangalore if you want to change the program Study Center. As I mentioned you earlier, regional centers has the jurisdictions or power to change the study center. Sir, I have submitted the email, but I didn't get any No, response. by email it will be not resolved. You have to you have to fill the particular form and submit to them. So please visit to the So IGNOU how I website. will get the form? IGNOU regional site, they will give you the sorry, IGNOU regional center will give you the form, or form may There also only be, they will give. yeah, please Okay. visit to them. They will do this needful. Sorry, sir, I'm interrupting in between. I'm facing the same problem. Yeah, this And is the same things. Sajan Singh, please Ji. contact your regional center physically, because these are the rare event for the regional center also. So if you want to change your study center or regional center, in both the case, you need to contact to your parent regional center and need to submit the hard copy along with your photocopy of your enrollment, that is a student identity card, which is carrying your enrollment number. Please, we'll discuss these things later if we have time. Priyanka Singh, I submit assignment now for April, June scheduled and want to appear exam in December. Yes, I have explained it. Priyanka Singh, you can appear in December also after submissions of the assignment right now. Logbook not received. If you have not received logbook, I already told I'll send it, this logbook, by email to all students, soft copy. Would be done based on the assignment. Yes, the internal assessment of theory will be done on the basis of the assignment you have written. And you have not received study center study material, I have already sent you link of the eGyan course from where you can download the course material. And still, if you have not received this study material, please contact to the MPDD registrar, where you need to mention your enrollment number, program code, course code, and write detail. There are many students or many email we receive like this. Sir, I have not received study material. Please send me study material. So I cannot identify the student by this simple email, because that email I need information need is enrollment number, program code, study course code, and your study regional center, everything I need, so that I can identify and help the student. Now, class will be the offline or online. Normally, we encourage the practical classes to be done offline. There are many centers who will be doing online theory counseling sessions. So, it's depend upon the center. We have given autonomy to the each center where they can connect to the students by offline or online, and the choice is belongs to them. So most of the theory courses, theory teaching will be done by the online, and almost all the practical courses, they will be done by the
offline in general, but it can be vice versa or it can be other way also. Then yes, answer can be written in Hindi or English or bilingual, anything. There are many students who find difficulty in writing English. They can write either assignment or termment in Hindi also. Yes, you can appear in termment practical examination in June exam also. Can I give, Kanika Gupta, can I give practical sessions in June and theory in December? Yes, you can do that one also. We have a flexibility. You can appear practical sessions in June and theory in December. That is also possible. Shalini Sharma, yes, good morning. Can I fill the logbook from now and after study the training guideline? Yes, you can start writing logbook right now by reading your practical manual books. Practical online or offline. एक सर मैं ऐड करना चाहूंगी. Yes, yeah, हाँ. Dr. Sinha. हाँ. आप ये जो लॉग बुक के लिए सभी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं, सर ने आपको बता ही दिया है कि आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं. और ये मेरी एडवाइस रहेगी, आप अभी से लॉग बुक को देखिए, उसमें उसकी पिक्चर्स है, जो आसन है या प्राणायाम है, मुद्रा है, बंद है, सभी की पिक्चर्स हैं. तो पिक्चर्स को आप फोटोकॉपी करा के रख लीजिए, क्योंकि क्या होता है लास्ट मोमेंट पे ना आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा कि आपको मोर देन 100 पिक्चर्स फोटोकॉपी करानी है या ड्रॉ करनी है. तो बेटर है आप पहले से ही उसका एक तो पिक्स प्रिंट आउट लेकर रख लीजिए, उन प्रैक्टिसेस को थोड़ा देखिए. फिर जब आपका स्टडी सेंटर आपको योगा क्लास करवाएंगे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, तब आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा. और 12वें दिन जो सर ने बताया अभी आपको, आपका इंटरनल एग्जाम होगा, तो वो देखेंगे कि आपने 11 दिन में क्या सीखा. और सर ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया कि आपको बहुत बारीकी से हर चीज को देखना है कि आप अगर कोई षटक्रिया कर रहे हैं, षटक्रिया मतलब क्लीनिंग प्रैक्टिसेस ना, उसमें कैसे बैठना है, कैसे आपको अपनी पोजीशन रखनी है, प्राणायाम में किस नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करना है. अगर आप ये सब चीजें गलत आंसर करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे. और मैं क्योंकि योग फील्ड से हूँ, तो सर मैं थोड़ा इनको योग का ये जो हमारा सिलेबस है उसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि ये सिलेबस बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है. आप सभी स्टूडेंट्स लकी हैं कि आप ये सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने सर्टिफिकेट लेवल से थोड़ा ज्यादा ही मटेरियल है इसमें. तो आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे योगियों के बारे में, योग क्या है, योग का अर्थ क्या है, और आपके जो इम्पोर्टेंट योग के ग्रंथ हैं उनके विषय में आप जानेंगे. जैसे भगवत गीता है, योग सूत्र है, हठ प्रदीपिका है, घिरण संहिता है, और सारे हमारे जो इम्पोर्टेंट योगीज हैं. और 4th ब्लॉक जैसा कि कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल योगिक टर्मिनोलॉजी है, उसमें चित्त विक्षेप, चित्त भूमि, चित्त प्रसादन, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं. आप कोई भी एग्जाम देंगे योग की फील्ड में, चाहे सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, PhD, सब जगह ये चीजें पूछी जाती हैं. और ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक्चुअली ओवरऑल योग के विषय में समझ में आएगा. क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि लोगों को लगता है कि योग क्या है, सिर्फ आसन है या फिर थोड़ा बहुत 2-4 प्राणायाम है. इसमें आपको बहुत अच्छी थ्योरी दी गई है जो आपके माइंड पे काम करेगी अगर आप उसको सीरियसली पढ़ेंगे तो. और इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी थोड़ी समझाई गई है, ताकि उससे ये पता चले कि आप जो योग अभ्यास कर रहे हैं आपके शरीर के किस किस भाग पर उसका प्रभाव पड़ रहा है. उसी तरह से मेंटल हेल्थ के विषय में भी है, आयुर्वेद के भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं. और बाकी प्रैक्टिकल में तो आपको पता चल गया, ध्यान है, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, हमारी क्लिनजिंग प्रैक्टिसेस हैं. तो ये सारा सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज वेरी गुड. आप इसको पढ़िए और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, और आपको इजी वे में आप कर सके और आपके ऊपर बर्डन ना आए, उसके लिए बोलूंगी आप लॉग बुक के लिए पहला तो मैंने आपको बताया कि आप पिक्चर्स को फोटोकॉपी करा के रख लीजिए. फिर आपके स्टडी सेंटर में जो आपके योगा टीचर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, योगा अभ्यास करवाएंगे, तब आप करिए और साथ के साथ लिखे जाइए. ऐसा मत छोड़िएगा कि मतलब लास्ट मोमेंट पे आप सारा करेंगे, तो क्या होगा, आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, देन आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे. और हाँ, उसकी प्रैक्टिसेस भी आपको करनी है अच्छे से. पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट आपको आना चाहिए. इसके अतिरिक्त जो थ्योरी पोर्शन है, मैं समझती हूँ कुछ स्टूडेंट्स को हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में थोड़ा टफ लगता है,
लेकिन सर ने आपको बता ही दिया आप हिंदी में लिख सकते हैं, और वो सेम कंसेप्ट हिंदी में बहुत जगह अवेलेबल है। और अभी हम लोग इस पूरे मटेरियल को हिंदी में ट्रांसलेट करने के प्रोसेस में हैं। अगर वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे विद इन 1 और 2 मंथ, है ना सर? मतलब अगर सीआरसी हो जाती है तो हम उसको मतलब आपके साथ शेयर Yeah, कर we can सकते do हैं। that. और तो आप इसको, और भी कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आंसर करेंगे आपको। लेकिन प्लीज कल जो पूरा फायर इंस्पेक्टर और समथिंग वो जो पूरा ज्वाइनिंग हो रही थी उस तरह से चीजें मत डिस्कस कीजिए। उससे क्या होगा, मेन आपका जो है ये ग्रुप जिस लिए बना है कि हम योग के विषय में डिस्कस करेंगे, आपकी जो क्वेरीज हैं, आपकी जो समस्याएं आ रही हैं, हम उनको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ डिस्कस करना है तो आप अलग ग्रुप बनाइए उसके लिए, ठीक है? और लॉग बुक साथ के साथ आप Yeah. तैयार करते रहिए, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू Thank you. डॉक्टर सीमा। मैं फिर से बताता हूँ, डॉक्टर सीमा जो है हमारा कंसल्टेंट है एंड उन्होंने योग में पीएचडी किया है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं डॉक्टर हूं बाय प्रोफेशन, मुझे योग के ऊपर कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन डॉक्टर सीमा यादव हमको हेल्प करती है। सो वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम स्मूथली। तो मैं इसमें आपको क्वेरीज को मैं बबीता प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैं और भी क्वेरीज है उसको कर देता हूँ। जैसे कि एक ने लिखा कि डाइटरी हेल्प, आई वांट टू डू ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल, मतलब इसका कोई मुझे समझ में नहीं आया। तो आप जब भी ऐसा लिखेंगे तो थोड़ा उसको लिखिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। स्टडी मटेरियल एट प्रेजेंट हिंदी में नहीं है, रीना कुमारी। एंड हैदराबाद सेंटर कॉन्डक्ट प्रैक्टिकल सेंटर, यस हैदराबाद सेंटर हैदराबाद में ही कराता है। तो आप हैदराबाद सेंटर से कांटेक्ट करिए। देन प्रिया सिंह, फ्रॉम वेयर आई डू गेट लॉग बुक एज ऑप्टेड फॉर ई बुक। हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं ईमेल में भेजूंगा आपको। मैं नेक्स्ट 1-2 डेज में अगर मैं नहीं भेजता हूँ तो आप मुझे एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं cpy@ignou.ac.in पे। प्रैक्टिकल क्लासेस विल बी डन ऑनलाइन और ऑफलाइन। भावना कुमारी, जैसे मैंने बताया कि ऑफलाइन ही होते हैं ज्यादातर, लेकिन वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सेंटर। नायक कौशिक सर, व्हेन दिस प्रैक्टिकल फॉर सीपीसी, ऐसे जैसे बताया कि डेट, एग्जैक्ट डेट जो होता है रीजनल सेंटर खुद डिसाइड करते हैं, तो रीजनल सेंटर ही आपको डेट करके आपको इन्फॉर्म करेगा। सो प्लीज कीप कॉन्टेक्ट टू द regional center, or else you need to visit to the IGNOU website, regional center website also, where they post the practical training schedule in their respective website. बहुत सारे लोग पेपर के ऊपर पूछते हैं, जैसे प्राची ने पूछा है, तो आप कोई भी व्हाइट पेपर या रूल पेपर में लिख सकते हैं। लोग पूछते हैं कि कौन सी इंक से लिखना चाहिए, ब्लैक से लिख सकते हैं, ब्लू से लिख सकते हैं, विजिबल होना चाहिए। मेरे कहने के मतलब है कि कोई भी पेपर में लिखे और उसको अच्छे से स्टेपल करिए ताकि ये मिसप्लेस ना हो पेपर। सारा पेपर को पेज नंबर करिए सो दैट अगर आप पेपर गायब हो गया तो पता चले। 12 दिन के प्रैक्टिकल क्लास के लिए स्टडी सेंटर में जाना होगा। यस, अगर स्टडी सेंटर फेस टू फेस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमारा जो दिल्ली 3 नारायणा सेंटर फेस टू फेस प्रैक्टिकल एग्जाम कराते हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर लोकेटेड एट मीरठ, वो आ नहीं पाते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको कोशिश करना है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना है। निकिता प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, when I took admissions, the center was in Chandigarh. After update IGNOU 724, how it is Chandigarh Regional Center and only department change whom shall I। अगर आपको असाइनमेंट के बारे में करना है तो आपको स्टडी सेंटर को ही करना है। अगर स्टडी सेंटर से रेस्पॉन्स नहीं आता है तो आपको IGNOU रीजनल सेंटर से कर सकते हैं। सचिन छड्डा, लॉगबुक के लिए क्या होता है, इसमें क्या करना है होता है, वही अभी तक बता रहे थे। लॉगबुक एक आपको गाइडेंस होता है जिसमें आपको हर आसन की किस कंडीशन में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए,
क्या इंडिकेशंस है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, और क्या किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए, वो सब लिखना है आपको खुद अपने हाथ से। तो ये है लॉग बुक, जो आपने काम किया है इस प्रोग्राम के ऊपर, उसके ऊपर एक एक्टिविटी का रिकॉर्ड बुक कह सकते हैं। लॉग बुक आपको कभी भी सबमिट नहीं करना करूंगी। या डॉक्टर सीमा प्लीज। हाँ सर, मैं ऐड करना चाहूंगी। जैसे आप सभी ने स्कूल्स में अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स बनाई होंगी ना, जैसे आपको प्लेन पेजेस होते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखते हैं, देन उसका एक साइड पिक्चर लगाते हैं, एक साइड लिखते हैं, है ना। तो उसी तरह से लॉग बुक है। लॉग बुक में हमने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ पेज के टॉप पे सिर्फ प्रैक्टिस का नाम लिख दिया। मान लीजिए पद्मासन है, उसका नाम लिख दिया, एक बॉक्स बना दिया ताकि आप उसमें पद्मासन की पिक्चर पेस्ट कर सकें। और नीचे हमने हेडिंग दे दिया कि टेक्निक, उसका टेक्निक क्या है वो आप स्पेस दे दिया, आपने खुद लिखना है। फिर उसमें हमने लिख दिया बेनिफिट्स, उसके क्या लाभ है वो लिख दिया है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रिकॉशंस, ये सब चीजें जो है इन सब की हमने हेडिंग दे दी और जगह खाली छोड़ दी है। तो आपको पिक्चर पेस्ट करनी है और उसके बारे में लिखना है। और वो आप कहाँ से लिखेंगे? एक तो आप अपनी प्रैक्टिकल क्लास ज्वाइन करेंगे जो स्टडी सेंटर में, चाहे वो ऑफलाइन है चाहे ऑनलाइन। उसके अतिरिक्त आपका जो प्रैक्टिकल मैनुअल है, जो प्रैक्टिकल बुक है ना आपकी, उसमें सभी प्रैक्टिसेस डिटेल में दी हुई हैं, उनके पिक्चर्स हैं, उनकी टेक्निक है, बेनिफिट्स हैं। आप उसको पढ़िए, उसमें कंप्लीट डिटेल है। आप उसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, स्टडी सेंटर में जो प्रैक्टिस है उसको कीजिए। उसके बाद आपको लॉग बुक बहुत ही इजी लगेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए जो मैंने आपको बताया कि पिक्चर्स पहले से आप रख लो, बिकॉज एट लास्ट टाइम, मतलब एग्जाम के टाइम पे आपको क्या लगेगा, इतनी सारी पिक्चर्स कट करनी है, देन पेस्ट करनी है, तो वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो काम थोड़ा सा आप पहले करके रख लो जब असाइनमेंट आप तैयार करो। असाइनमेंट भी आपको बता ही दिया सर ने, वो सिंपल जैसे क्वेश्चन पेपर की फॉर्मेट में है। आपके क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उनको आपने लिखना है और आपसे लिखना है। आप किसी और से नहीं लिखवाना है या फिर किसी का कुछ स्कैन नहीं करवाना है, आपको खुद से अपने हाथ से हैंड रिटन होगा, तभी आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। Okay. Ma'am, do we need to maintain the record date-wise and class-wise in the practical session? नो वो आप अपने पास पर्सनल के लिए रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और लॉग बुक में भी ऐसा कुछ आपको स्पेसिफिक नहीं लिखना है कि इस डेट पे पद्मासन हुआ था या इस डेट पे शीतली प्राणायाम हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। वो रिकॉर्ड नहीं लिखना, वो सिर्फ आपको कंप्लीट ऐसे ही लिखना है। डेट आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी रफ कॉपी में लिख के रख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बुक्स है। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बुक में आपका ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बुक है, उसके अंदर आपका डिफरेंट आसन्स कैसे करते हैं वो डिटेल डिस्क्रिप्शंस दे रखा है। ठीक है, ये आपका लॉग बुक है, ये लॉग बुक है। तो लॉग बुक के अंदर हमने जैसे कि ये छोटी जगह है, तो उसके अंदर ये जो स्क्वायर है यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना है। बहुत सारा स्टूडेंट जो आपका प्रीवियस बैच का स्टूडेंट है, उन्होंने खुद आसन करके खुद का पिक्चर खींच के चिपकाया हुआ है। सो जो डॉक्टर सीमा अभी आप लोगों को बता रहा था, फोटोकॉपी करना है, फोटोकॉपी करने की भी जरूरत नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट्स अपनी खुद का पिक्चर लगा के लाते हैं, दिस इज सेल्फ सेटिस्फैक्शन। और यहाँ पे देखिए लिखा है बेनिफिट्स क्या होगा, प्रिकॉशंस क्या होगा, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होगा, टेक्निक क्या होगा, यह सारा चीज आपको देख के लिखना है इस बुक से। इस बुक में जैसे कि यहाँ पे पूरा दे रखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें से देख के आपको लिखना है। तो इसमें मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारा वेबसाइट में अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सकता है जो प्रॉपर टेक्निक नहीं है, और हर टेक्निक का अलग अलग एक प्रॉपर गाइडलाइन होते हैं। तो इग्नू एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाया है, तो आपको इसी स्टडी मटेरियल का ही फॉलो करके आपको लिखना है। तो इसलिए मैं इस चीज को फिर से बताता हूँ, आपको इग्नू का बुक प्रॉपरली अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आपको बहुत सारा चीज जो है ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबमिट लॉग बुक आपको कभी भी नहीं करना है, आपको अपने पास रखना है, एग्जाम टाइम में आपको जाकर दिखाना है और फिर से लेके आना है। Can I attend practical session in the December? Yes, I already told that. Study material available in Hindi? No, study materials is not available in Hindi.
इज इट नेसेसरी टू विजिट स्टडी सेंटर? अगर प्रैक्टिकल, अगर आपका फुल टाइम मतलब फेस टू फेस होगा तो आपको स्टडी सेंटर प्रैक्टिकल देने के लिए जाना ही पड़ेगा। सर ऑफिस जाएंगे तो स्टडी सेंटर कैसे जा पाएंगे 12 डेज रेगुलर? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारा सेंटर जो है सैटरडे संडे को कराता है, बहुत सारा दिन छुट्टी के दिन में कराता है, तो वो डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। उसमें जो डेट होते हैं वो हम डिसाइड नहीं करते, वो क्योंकि जो आपको टीचर आपका उस सेंटर में सिखाएगा उनकी टाइम के हिसाब से वो डेट डिसाइड करते हैं। तो फिर प्रैक्टिकल एग्जाम तो कभी अटेंड नहीं कर पाएंगे, वो सैटरडे संडे अगर नहीं होता है, वीकडेज में करवाते हैं, तो फिर तो हाँ, अटेंडेंस शॉर्ट वो हो एक जाएगा। चैलेंज है, वो एक चैलेंज है। तो आप अपने टीचर के साथ, इसीलिए जो नॉर्मली दिल्ली की टीचर है, ही इज़ वेरी एकोमोडेटिव। वो पहले दिन बुलाने के बाद आप सारे स्टूडेंट से फीडबैक लेके ही डेट डिसाइड करते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके स्टडी सेंटर को आप रिक्वेस्ट करिए कि आपका सारा प्रैक्टिकल डेट सैटरडे संडे या फिर छुट्टी वाले दिन पे रखे। ये अगर टीचर्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत अच्छा होगा। तो ये आप डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि वर्किंग डे में ही होगा। तो सॉफ्ट कॉपी कब मिलेगी? सॉफ्ट कॉपी का लिंक ऑलरेडी मैंने भेज दिया है प्रिया सिंह। क्लासेस विल स्टार्ट कब होगा ये स्टडी सेंटर बताएगा, ये अभी हम नहीं बता सकते। आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आपने मेल नहीं पढ़ा होगा, उसका मतलब मेल में मैंने चैट लिंक दिया है, उसको स्कैन करके या फिर लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन लॉगबुक कब सबमिट करना है, इसके ऊपर बहुत लोगों ने पूछा है। सॉफ्ट कॉपी वालों को लॉगबुक कब मिलेगी वो भी बता दिया हूँ मैं। मीडियम ऑफ रूल्स इंग्लिश हिंदी में लिख सकते हैं, ये मैंने बताया। सर टू चेंज आवर रीजनल सेंटर को संपर्क करना है, ये भी बता दिया। क्या रीजनल सेंटर एंड स्टडी सेंटर अलग? प्लीज मैं सारा पहले चैट बॉक्स खत्म करता हूँ, देन आई विल आस्क वन ऑफ यू। प्लीज अभी थोड़ा संयम रखें। बहुत सारे जगह पे स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर सेम नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर सेम होते हैं। ये आपको देखना है। अगर आपका स्टडी सेंटर कोड में लास्ट में 000 आ रहा है तो आपका ये स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर ही है, लेकिन आपका उसमें दूसरा चीज होता है, दूसरा स्टडी कोड होता है जो लास्ट में 000 नहीं होता, तो उसका मतलब वो अलग सेंटर है। जैसे दिल्ली 3 रीजनल सेंटर ही उनकी स्टडी सेंटर है, लेकिन बेंगलोर में जो है वो स्टडी सेंटर अलग है, रीजनल सेंटर अलग है। जॉब के लिए क्या सर्टिफिकेट कोर्स के बाद क्या करना पड़ेगा ये अभी हम नहीं बता सकते। पूनम यादव जी, हमने पहले ही बताया कि ये प्रोग्राम जॉब के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, ये योगा का मास लेवल अवेयरनेस की पर्पस के लिए बनाया गया था। थैंक यू सर। ओके सर, एनी अप्रोक्सीमेटली डेट व्हेन प्रैक्टिकल सेशन? ये मैं नहीं बता सकता। कैन आई रिक्वेस्ट ऑफलाइन स्टडी मटेरियल थ्रू? वो आपको स्टडी सेंटर में आना पड़ेगा, भावना कुमारी, आपको इग्नू हेडक्वार्टर में आना पड़ेगा आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो। क्वेश्चंस पूरे लिखने ही असाइनमेंट का? यस, आपको पूरे क्वेश्चंस का असाइनमेंट लिखना है, where we have to submit the assignment in the online mode। वो आपको स्टडी सेंटर बताएगा, लेकिन इन जनरल आपको ऑफलाइन सबमिट करें तो बेटर है, सो दैट प्रोसेस कैन बी फास्टर। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, मिक्स करके भी लिख सकते हैं। सचिन छड्डा, कैन बी रिसीव हार्ड कॉपीज ऑफ स्टडी मटेरियल नाउ इफ ओनली ऑप्टेड? नहीं, अभी तो आपको खरीदना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया। असाइनमेंट आर सबमिटेड मैनुअली बेटर। रीजनल सेंटर बैंगलोर, असाइनमेंट हिंदी, यस दे आर सपोज टू एक्सेप्ट। प्रैक्टिकल सेशंस का डेट मेल पर इन्फॉर्म, या सारा कम्युनिकेशन ईमेल पे ही आएगा। कोलकाता सेंटर का भी डेट कोलकाता वालों ही बताएगा। यस, ऑलमोस्ट मैंने सारा रिप्लाई कर दिया। नाउ
मैं ऑब्जर्व कर रहा था हमारा आरसी रीजनल सेंटर है, आरसी रीजनल सेंटर से अगर कोई है, अगरतला रीजनल सेंटर था, तो सर अगर आपका कोई कमेंट्स, आपका कोई क्वायरीज है तो एनी आरसी जिसने ज्वाइन किया, मैं उनसे फीडबैक लेना चाहूंगा, उनके क्वायरीज जानना चाहूंगा। आरसी अगरतला प्लीज, कैन यू हियर मी? यस, आरसी अगरतला रीजनल सेंटर अगरतला से अगर कोई बताना चाहेगा क्वायरीज। Thank you, Dr. Jamatia, for your nice presentation. Everything is very clear. But I believe that as far as practical counseling sessions are concerned, maybe some nodal regional center will be conducting this theory counseling sessions online. So I don't know which regional center is nodal regional center for conducting online counseling sessions, but I believe the learners will be getting that communication. And also we have the list of nodal RCs in the programs where enrollment is less than 200. Then in such programs, the counseling sessions, theory counseling sessions are conducted online. So that will verify. And as far as practical counseling sessions are concerned, there is little bit difficulty because number of learners in the regional center is only one. For Agartala, I have seen only one learner has taken admission in CPY. So conducting the practical counseling sessions, we will find certain difficulties. So I'd like to request you how to go ahead with this problem actually. Yeah, thank you, sir, for your comments. Actually, the CPI program is not belong to the total number of enrolled is more than 200, so it is not belong to the small enrollment. So till date, if I am correct, the nodal center has been not assigned yet. However, there are a few centers who is giving the online teaching sessions for across the country, the students located across the country. Even for a number one students, if you want to conduct the face-to-face practical training, you please write us. We try to look into this issue and discuss with RSD and try to arrange the practical training. There are many places, regional center, when 2, 3, 1, this kind of students are involved. So we try to include them in some online practical training or face-to-face training at the respective regional center. That is the one thing. Is there any RC? Yeah, please. I think, Dr. Jamate, that will be fine because for economic scale of economics, actually, if practical sessions for such centers where enrollment is, I think, 1 or 2, if it is conducted online, like during COVID period, we have conducted many practical counseling sessions online. That will be a very good idea. And also it will be beneficial for many of the learners who are employed. So you may kindly consider this aspect. Yeah, there are many regional center like you. Their numbers are less than 10. So I try to communicate them and I will try to update you accordingly. So you can also raise questions from your side and we will also look into this. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Is there any other regional centers who would like to give any comment? Please. How many numbers are there in Noida Regional Center? In a Noida Regional Center, I think number are less than 10 or so. And when is there any idea when classes are going to conduct, and what are the possibility to have offline classes? Avi Jaiswal, as I told already, that all these dates will be decided by the respective regional centers, which date I am not aware right now. And when it will be decided, students will be communicated by their respective email. Okay. Is there any academic counselors? Dr. Jamatia, I would like to clarify here that as the courses are of 4 credit, 2 courses are 4 credit and practical courses of 8 credit worth. So generally as per IGNOU norms, for a 4 credit course, there will be 5 face-to-face or online counseling sessions. If there is the number of learners is more than 10. But if the number of learners in a particular regional center is less than 10, then there will be intensive counseling session. That is 40% of the prescribed counseling sessions. So in such case, 40% of 5 counseling sessions, that means 2 counseling sessions. So within 2 counseling sessions, all the course materials, means a particular course, this counseling sessions will be done. And counseling session is not, as you know, it is not, classes.
only counseling sessions are conducted to clarify the doubts or difficult points raised by the learners. So Yeah. it is not that during counseling sessions the syllabus will be completed. It is the responsibility of the distance learner to complete the syllabus. And while going through the materials, if they face any problem or any questions come in their mind, then they can raise those questions during the counseling sessions. So Yeah. as per IGNOU norms, the counseling sessions either full 5 or intensive will be conducted by the respective regional centers. That is the clarification from my side. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir, for your clarifications. And as it was mentioned that the distance education setup, we don't say it is a teaching sessions, we say it is a counseling sessions. It means if you have any clarifications, any difficulty in understanding some topic, we discuss these things. So we normally do not teach didactically like classroom teaching. Yes, there are some students asking the Tarment examination will be online or offline. Tarment examination will be offline. You have to visit in particular exam center and you have to sit down and write the Tarment theory examinations. Okay. Now, I would like to ask, is there any academic counselors who join in these sessions? And if you have any queries, you can open your mic and you can inform us. Or else we'll move to the students. This time I have also invited some of our new academic counselors who are associated with IGNOU in this particular program. So, sir, now learners, I think learners, they should submit the assignments by 30th April for June terminal exam. The last day to submit the assignments at respective study center is 30th April. And they should also fill in the terminal examination form online with requisite fee. Our website address is ignou.ac.in. So before, within this month, they have to submit the assignments, also fill in the terminal form. And terminal date sheet is also available online. So Yeah, students can know. I have already informed them. Yeah. So that's, I am re-emphasizing this fact. So these are the 3 aspects they should be aware of at this point. Yes. Thank you. Yeah, so dear students, now I would like to open it for you. So please ask questions. आप वो सवाल मत पूछिए जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. Please, one by one. सर 30th अप्रैल लास्ट डेट है, तो हम 30th अप्रैल को स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं क्या असाइनमेंट? Can we dispatch it on 30th April itself? Yes, you can do it. If I understood properly, there will be online classes for theoretical subjects, and there will be practical classes online or offline. Am I correct? Yeah, both the things possible, sir, depending upon the number of the students in particular regional center. Okay. Suppose if students are coming, for example, in Delhi 3, we have a large number of students. So if students want, the classes can be on offline also. Theory classes can be offline also. There is nothing like sacrosanct कि आपको ऐसा ही करना है. We will receive the communication in this regard. Yes, you will receive the communication from the respective study center or from other center. Okay. Wherever it will be done offline or online, everything will be informed to the students. Okay. So all students are requested to keep checking your email. There are many students जिसका email ID proper नहीं है. So I really feel sorry for them. There are many emails are bouncing back. Okay. You will get information from the respective. Very nice. Number 2, I opted for physical books receiving. I received all the books, but logbook not there in that books. Whom I have to contact? Is it? So please write one email to the registrar mpdd@ignou.ac.in. Okay, I'll write. Okay, that's nice. And in this meantime, I'll also send you the soft copy of the logbook on your email, and you can also download it and start working on it. Okay. And the other day we heard that YouTube channels you have shared, but I did not receive the mail. Again, you will be sending? Yeah, I sent to all students. And by mistake, it was deleted. No issue. I'll send it again to all students. Okay, please, kindly. Thank you. And it is a paper, the full scale or A4 also. Can we write assignment? Yeah, you can write half scale or full scale.
ruled, white. Only thing is it need to be well read and visible. Very. If you are typing and submitting, it will be fully rejected. It need to be handwritten. Yes. Excuse me, sir. Yeah, Babita. सर हाँ हेलो सर, हाँ मैं ये पूछना चाह रही थी सर, जो हम असाइनमेंट्स लिख रहे हैं तो असाइनमेंट में जैसे हमें कुछ मटेरियल बुक में थोड़ा सा अगर हमें कम लगता है वर्ड्स टू वर्ड्स, तो क्या हम अपने ओन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसमें कुछ सबमिशंस कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो सही होना चाहिए। जी हाँ, राइट, बिल्कुल सर, राइट होना चाहिए। जी सर, बहुत सारा आपको सोर्स मिलेगा, लेकिन बहुत सारा सोर्स, ठीक है? हाँ राइट सर, एक्चुअली में मेरी थोड़ी इंग्लिश मीडियम की प्रॉब्लम्स है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू सर कि मैं हिंदी मीडियम में जब अगर उसमें से मेरे को इतना मैं उस पर कलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अपने आप से हिंदी मीडियम में कुछ मेरी अपनी नॉलेज डिपेंड ऑन मेरे नॉलेज के ऊपर है, तो उसमें कुछ हम सबमिट कर सकते हैं जो मेरे अपने सेल्फ के नोट्स हैं काफी टाइम से, उसमें से ही पूछना चाह रही थी मैं आपसे। कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑब्जर्व किया था, तो वो गलत लिखते हैं, ठीक है? तो आपको कोई भी चीज आपको वेरीफाई पहले कर लेना है कि ये सही है कि या नहीं, ठीक है? लिख सकते हैं, बाहर से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सही होना चाहिए। जी सर, जी हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। सर ये जो लॉग बुक के आगे फ्रंट वाला पेज है, डिटेल्स अबाउट कॉन्टेक्ट सेशन, सर ये हमें वहीं पर प्रैक्टिकल जब होंगे तभी बताएंगे क्या भरना है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4? हाँ, वो नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है? वो नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन आपको पूरा लॉग बुक में आपको पूरा करना है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मेरी एक क्वेरी है, एक एक करके प्लीज, आई विल लिसन टू ऑल ऑफ यू वन बाय वन। Next. Sir, I have one query. Like, what I have understand, like I have to present in practical session. 100% attendance is required. In theory as well, 100% attendance is required. Like it is offline or online. No. Theory, we don't endorse any attendance. Okay. Just for practical, it is 100%. Yeah. Yes. It is. Yes. Okay. Got it. Thank you. Thank you, sir. Next. Sir. Hello. Yeah, Sachin, please wait. Yeah, Samar. Yes, sir. Yeah, सर मेरा please. क्वेश्चन ये है कि जैसे हम प्रैक्टिकल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम क्या स्टडी सेंटर में होगी और कहीं होती है? स्टडी सेंटर में ही होते हैं। अच्छा, एग्जाम also training also we try to give in the same study center. Okay, thank you sir. Afternoon, sir. कनिका प्लीज वेट। सचिन आप कुछ बोल रहे थे। हेलो, हाँ जी, रिस्पेक्टेड सर एग्जाम का जो मीडियम ऑफ, तो यदि हम अपनी मदर टंग में मेंशन कर देते हैं कुछ या प्योरली टोटली हिंदी में कर देते हैं, तो एग्जाम में मार्क्स तो नहीं डिडक्ट होंगे? देखिए, जब आप मदर टंग बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं, दोनों में फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, मदर टंग त्रिपुरी है, ठीक है? मैं अगर त्रिपुरी लैंग्वेज में लिखूंगा तो कोई ऐसा एग्जामिनर नहीं होगा जो कि त्रिपुरी लैंग्वेज जानता हो, ठीक है? हिंदी मैक्सिमम लोग जानते हैं, ठीक है? हिंदी में कर देना, हिंदी नेशनल लैंग्वेज। हाँ, हिंदी में आप लिख सकते हैं ताकि हिंदी मालूम है। लेकिन हाँ, ये चैलेंज हम फेस करते हैं, अगर साउथ इंडिया में कोई तमिलनाडु में स्टूडेंट बैठा है, वो अगर हिंदी में लिखेगा तो वहाँ के टीचर्स को अगर हिंदी नहीं मालूम होगा तो उसका एग्जामिनेशन पेपर एसएस मतलब रिजल्ट डिक्लेरेशन होने में बहुत टाइम लगता है। उसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप दोनों स्टूडेंट एक साथ एग्जाम दिया, एक ने इंग्लिश में लिखा, एक में हिंदी में लिखा, और एक में इंग्लिश में लिखा, 3 लोगों ने 3 जगह पे लिखा। राइट सर। लेकिन जो हिंदी वाला पेपर है वो किसी एक टीचर को जाएगा जो कि हिंदी जानता हो। एक जो इंग्लिश लिखा है वो एक टीचर के पास जाएगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानता हो। तो ऐसा करके वो हो सकता है कि अलग अलग सेंटर पे जाए। तो हो सकता है कि पहले जो टीचर है वो हफ्ता 10 दिन में एग्जाम उसको करके पेपर वापस कर दिया, लेकिन दूसरा आपका जो टीचर है वो 1 महीने बाद उसको एग्जाम करके भेज रहा है। तो इसमें इसलिए आप कल ये क्लेम मत करिए कि हम दोनों ने एक साथ एग्जाम लिखा, मेरा साथ वाले का तो एग्जाम रिजल्ट आ गया है, मेरा आया नहीं। कॉन्फिडेंशियल पर्पस के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए हम
एग्जाम पेपर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री का एग्जामिनर के पास भेजते हैं। हो सकता है कि जिस स्टूडेंट ने गुजरात में एग्जाम लिखा हो उसका पेपर असम में भी जा सकता है, जिसने दिल्ली में एग्जाम लिखा हो उसका पेपर हम तमिलनाडु में भी भेज सकते हैं। ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन सेक्शंस के ऊपर। ठीक है सर। हो सकता है कि दिल्ली का पेपर दिल्ली में भी चेक होता हो, ठीक है, जो हमें नहीं मालूम, लेकिन जिसका पेपर दिल्ली में चेक हुआ है उसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। जिसका पेपर आपका उड़ीसा में गया हो या तमिलनाडु गया हो उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का बाद में ये कॉम्प्लेन रहता है कि सर हम तो सब एक साथ एग्जाम दिए थे लेकिन मेरा दोस्त का तो एग्जाम रिजल्ट आ गया है, मेरा आया नहीं। ओके सर, ठीक, राइट सर, क्लियर? ठीक है सर, राइट सर। जब हमने सर फॉर्म फिल किया था ना उसमें ओनली सिर्फ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही हो रहा था, आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ऐसा तो नहीं कोई चक्कर पड़ेगा ना बाद में डिडक्शन में मार्क्स? नहीं। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नेक्स्ट। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी कृतिका बताइए। फॉर्म भरते हुए बुक्स के लिए मतलब हार्ड कॉपी के लिए अप्लाई किया था। हाँ जी। तकरीबन 20 दिन हो गए एडमिशन को। जब वहाँ पर स्टेटस चेक करते हैं तो सिर्फ वहाँ पर एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। आप जो है एक रजिस्टर्ड एसआरडी को एक ईमेल लिखिए एंड रजिस्टर्ड एमपीडीडी को एक ईमेल लिखिए, साथ में उसका कॉपी जो है आप cpy@ignou.ac.in को लिखिए, so that we will forward this email to the concerned division। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। Good afternoon, sir. Yeah, Purnima, please tell me. Sir, I wanted to inquire how do we get the contact details of the IGNOU coordinator of our respective study centers? Technically, if you visit to the website of the regional center, you type, you go to the IGNOU website, okay? If possible, try to show it. Just give me time. I am trying to share my screen. Is it coming? No, sir. Not coming. Not yet. Good afternoon, sir. Just Yes, please yes. wait, please, one by one. Okay, sir. Okay, sir. Somehow it is not coming. Just wait. I'll try to show you in IGNOU website. Is my screen visible? Yes, sir. The screen is IGNOU visible, website? but IGNOU website? no, sir. IGNOU website is not visible. No. What is visible in this IGNOU website? Is it black? Just the meeting screen, sir. Meeting screen. Okay. I'll tell you very simplified way. You visit to the IGNOU website. Okay. In the IGNOU website, you will find like the student support. In the student support, you will get about the student Zoom and other details. You find the regional network. In the regional network, you will find the IGNOU website. So once you visit to the respective regional center particular website, for example, website of the Bangalore Regional Center, within Bangalore Regional Center, you will find the study center. So once you go there, you'll find your own study center. Like once you search by the CPY, you will easily find it. So this is how you will find the respective regional centers. Because we have 56 regional centers, so I also do not know everyone.
like across the 56 centers who are the coordinator. But this is the way you can find. Yes, sir. Thank you so much. Please. Next. गुड आफ्टरनून सर। Yeah, Narinder. सर 2 क्वेश्चन है मेरे। एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हमें बुक मिलेंगी बाय पोस्ट मिलेगी या फिर हमें रीजनल सेंटर से ही लानी पड़ेगी? बाय पोस्ट मिलेंगे। ठीक है सर। सर कब तक आने की उम्मीद है रहेगी लगभग एग्जाम फॉर्म भरने की? अभी तक तो आपको बुक मिल जाना चाहिए, फिर भी अगर नहीं मिलते हैं तो आप MPTD साइट में जाके आप चेक करिए आपका स्टेटस क्या है। कई बार ट्रांजिट टाइम में होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो आप MPTD रजिस्ट्रार को एक ईमेल करिए, एक कॉपी मुझे भी करिए cpo@ignou.ac.in पे, so that we can look into this issue. ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है, जो एग्जाम होगा हमारा रीजनल सेंटर पर ही होगा या एग्जाम सेंटर कोई अलग भी हो सकता है? एग्जाम सेंटर आप जो चूज करेंगे वही होगा। मैंने बताया ना कि आप चाहो तो कश्मीर में भी जाके लिख सकते हो, तमिलनाडु में भी जाके लिख सकते हो, वो सेंटर आपको चूज करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म में जो भरेंगे वो होगा? या आप एग्जामिनेशन फॉर्म में जो जगह भरेंगे आपको वहीं पे एग्जाम होगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरे को ये पूछना है कि हम एक ही आंसर में 2 लाइन हिंदी में 2 लाइन इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हैं क्या? मिक्सचर ना करे तो बेटर है, ऐसा ना करे तो बेटर है। आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए। नहीं, एक आंसर हिंदी में एक आंसर इंग्लिश में ऐसा कर सकते हैं? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। जैसे सपोज 8 नंबर क्वेश्चंस आपने इंग्लिश में लिखा, 9 नंबर क्वेश्चंस आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चंस के अंदर, एक आंसर के अंदर आप एक लाइन ऊपर से इंग्लिश में लिखा, नीचे हिंदी में लाइन लिखा, ऐसा मत लिखिए। सर असाइनमेंट में मैंने ऐसा कर लिया तो उसको चेंज करूं? हाँ जी, असाइनमेंट बनाते समय मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसे लिख दिए हैं, 2 लाइन इंग्लिश में लिखी, उसको आप चेंज करिए प्लीज। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जितनी ईमेल आईडीज आपने अभी बताई है ना, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आपकी प्रोग्राम गाइड में पूरे ईमेल आईडी है, आप एक बार प्रोग्राम गाइड को पढ़िए प्लीज। प्लीज रीड योर प्रोग्राम गाइड। गुड आफ्टरनून सर। हाँ पूनम जी बताइए। सर मुझे ये पूछना है, इस सर्टिफिकेट कोर्स के बाद अगर हमें कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है तो कुछ एडवांस कोर्स करना पड़ेगा, कौन सा होगा? क्या आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? ये प्रोग्राम जॉब के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये कोर्स में हम इतना सिखाते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम की जो डिप्लोमा प्रोग्राम में भी इतना शायद नहीं सिखाते हैं। तो आप ये प्रोग्राम करने के बाद योगा सर्टिफिकेशन लेवल 1 और 2 इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप योगा सर्टिफिकेशन लेवल एग्जाम 1 क्लियर करते हैं तो आप बहुत सारी जगह पे जॉब के लिए उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो सर वो लेवल 1 एग्जाम के लिए हम कहाँ से आप लोग कराते हैं इग्नू में कि कहीं और विजिट करना पड़ेगा? योगा पड़ेगा? सर्टिफिकेशन बोर्ड एग्जाम कराता है ना, इग्नू नहीं कराता वो। अच्छा, डॉक्टर सीमा कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी सर। देखिए जैसे आप लोग मास्टर्स कर लेते हैं तो यूजीसी कंडक्ट करता है आपका यूजीसी नेट एग्जाम, है ना। उसी तरह से आपने ये कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम इग्नू से कर लिया या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कर लिया, उसके बाद योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है, आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और उसके सेंटर्स हैं हर जगह, काफी जगह है, जो आपका नियरेस्ट हो वहां से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। लेवल 1 का अगर आप एग्जाम कंडक्ट कर लेते हैं तो आप इंस्ट्रक्टर लेवल की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेवल 1 का। उसकी कुछ फीस होती है, जो फीस थोड़ी आई थिंक ज्यादा ही है, लेकिन हाँ आप अपना नियरेस्ट देख लीजिए, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का सेंटर हो, आप फॉर्म भरिए वहां पे, वो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, आप एग्जाम दीजिए, रिजल्ट आएगा तो आपको लेवल 1 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और एक बात ये कि सर्टिफिकेट, ये जो प्रोग्राम है हमारा इग्नू वाला, इसमें इतना ज्यादा सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है कि आप लेवल 1 बहुत ही इजीली क्लियर कर लेंगे, तो आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने नहीं पड़ेंगे। हाँ, लेवल 2 में ये है कि कुछ टॉपिक्स हैं वो, लेकिन वो थोड़ा हायर लेवल का है, उसके लिए उसमें कर भी सकते हैं अगर आप अपनी कुछ अलग से स्पेशल मेहनत करेंगे, कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, थोड़े से सब्जेक्ट उसमें और ऐड ऑन किए गए हैं। लेकिन हाँ, लेवल 1 तो आप बिना पढ़े स्पेशली आप केवल सर्टिफिकेट ये हमारा प्रोग्राम करके इजीली दे सकते हैं, वो इंस्ट्रक्टर लेवल का है लेवल 1।
तो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आप सर्च करिए, उसके सेंटर सर्च करिए आपके आसपास, वहां जाइए, या ऑनलाइन प्रोसेस ही आई थिंक होता है, फॉर्म भरिए, फिर वो आपको डेट बताएंगे कि इस डेट को एग्जाम होगा। तो जिस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसी तरह से होगा, और थ्योरी एग्जाम भी होगा, और वो आप क्लियर कर लेंगे तो आपको लेवल 1 का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आप उस लेवल 1 के सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हैं जहां कभी कहीं इंस्ट्रक्टर लेवल की लेवल 1 की जॉब निकलेगी। तो क्या इस मैम सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी Okay, लाइफ टाइम ma'am. रहती है? अभी मैं 100% नहीं बोल सकती, बट उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं है। आई थिंक 3 और 5 ईयर ऐसा है, लाइफ टाइम तो नहीं है। ओके, फिर उसके बाद अगेन आपको देना पड़ता है एग्जाम। अच्छा, इसमें और हाँ, इसमें मैं और एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत सारा स्टूडेंट होता है एक दूसरे से कॉपी करके असाइनमेंट जमा करते हैं, तो जो लोग ऐसा नकल करके असाइनमेंट एक दूसरे को लिख के जमा करते हैं उनको हम सबको 0 देते हैं। मतलब जिसने नकल किया और जिससे नकल, सपोज 3 असाइनमेंट मेरे पास आया और तीनों लोग एक दूसरे से नकल करके लिखा है, इसमें ओरिजिनल कोई एक बंदा रहा होगा, लेकिन हमें तो मालूम नहीं कि किसने ओरिजिनल है और किसने नकल किया, तो हम इसलिए तीनों लोगों को 0 दे देते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आप लोग ऐसा कम से कम मत करिए, असाइनमेंट ऐसा नकल मत करिए, अपने हिसाब से लिखिए। बुक में सब कुछ दे रखा है, सिर्फ बुक को देख के, बुक को पढ़ के आपको लिखना है, ठीक है? हाँ जी, और नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस? सर अभी आपने बताया जो असाइनमेंट है वो बुक से करना है, तो बुक में तो सर सबका सेम ही होगा फिर अगर बुक से करेंगे तो? अरे अपनी लैंग्वेज क्योंकि में भी बुक तो में लिखेंगे ना, बुक से लाइन टू लाइन थोड़ा ही ना तूते की तरह लिखना है भाई। बुक को पढ़ के अपनी लैंग्वेज में भी तो लिखना है, एज इट इज बुक का। एज ए एग्जाम? नहीं सर एग्जाम की तरह ही लिखना होता है ना, जैसे एग्जाम में हम लिख रहे हैं किसी क्वेश्चन का आंसर एज इट इज। एज इट इज बुक में जो है उसको अगर हर कोई लिखेगा तो आपने थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग लगा के लिखना है तो एक नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और हैंड राइटिंग भी आपकी अलग अलग होगी ना। सर का कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि सपोज नरेंद्र ने लिख दिया, देन सचिन ने उसका फोटोकॉपी कराया और भेज दिया, तो ऐसा पहले एक बार हुआ है जिसमें हमने सबको 0 मार्क्स दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना, लिखना आपको सबको अपना है, बाकी अपना भी अपनी समझ से भी कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे ना आप। तो देखिए आपने पूरा, मान लीजिए षट चक्र का कंसेप्ट है वो आपने पूरा पढ़ लिया, तो आप जो लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी अपनी खुद की भी लैंग्वेज आ जाती है ना, एकदम से ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो वो हो सकता है, उसमें मनाही नहीं है, लेकिन आप थोड़ा अपना ऐड करेंगे और अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। जी, और कोई सवाल हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर हाँ, आपने एक जैसे अभी चीज मैं कहा, सर सबको after that बताना I- चाहूंगी। हाँ, अनन्य 1 मिनट। आप सभी जो अपने असाइनमेंट सबमिट कराते हैं बाय हैंड जाकर या बाय पोस्ट, प्लीज उसका रिकॉर्ड रखिए, क्योंकि हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने तो सबमिट की थी बट हमें उसके मार्क्स नहीं मिले, या फिर पता नहीं उसकी मार्किंग हुई है कि नहीं। तो आप जो भी सबमिट करेंगे, जब सेंटर में जाके करेंगे तो वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, रिसीविंग देंगे, वो आपने संभाल के रखनी है। और जैसे पोस्ट करेंगे तो वो भी संभाल के रखिए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई समस्या ना आए असाइनमेंट से रिलेटेड। हाँ अनन्या बताइए, आप पूछ रहे थे कुछ। यस सर, मैं यही पूछ रही थी, एज यू सेड कि टू चेक द स्टेटस ऑफ आवर पोस्टल, कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो कहाँ तक पहुँचा है, एज इन केस मैंने रिसीव नहीं किया अभी तक। तो when I logged into this website as provided in our mail ID, after I gave my enrollment number, it's still showing that enrollment number not found. जबकि मैंने ऑलरेडी समर्थ पे खुद को एनरोल कर दिया है। मैंने जो प्रीवियस समर्थ.edu.in पे मैंने अपना ऑलरेडी एनरोलमेंट कर लिया है, बट स्टडी मटेरियल की लिंक पे शो कर रहा है कि एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड। तो व्हाट एम आई सपोज टू डू इन दिस केस? या अनन्या, मैंने आपकी जैसे ही एक स्टूडेंट को रेस्पॉन्स किया था ना, आपने सुना होगा, यू प्लीज राइट टू द रजिस्टर्ड SRD। ओके and you please write to the register MPDD about your problem and mark us a copy so that we will forward to them to look into the issue. Okay. Thank you. Thank you sir. और कोई सवाल?
सर नमस्ते। हाँ नमस्ते प्रियंका जी, बताइए। सर मैं यहाँ कोलकाता से बोल रही हूँ। मेरा स्टडी सेंटर यहाँ पे जो है वो विकास भवन में है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, क्या कोई ऑफलाइन क्लास होगी क्या प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले अभी, या सारे ऑनलाइन क्लास ही होंगे? जैसे आज ऑनलाइन इंडक्शन क्लास हुआ है। थैंक यू। जैसे मैंने पहले ही बताया है, कहाँ पे ऑनलाइन होगा, कहाँ पे ऑफलाइन होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो सब जो है रीजनल सेंटर डिसाइड करके बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी आपकी सवाल का जवाब देने में मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको। ये आपका सब्सिक्वेंटली जो भी डिसीजंस होगा वो आपको ईमेल में कम्युनिकेट किया जाएगा। तो क्या हमको स्टडी सेंटर पे जाके पूछना चाहिए? नहीं, जाके पूछने से भी पता नहीं चलेगा, जब तक वो डिसाइड नहीं करेगा आप जाने से भी वो आपको क्या बताएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, और कोई सवाल? Hi मेरे sir. ख्याल से हम लोगों ने मैक्सिमम डिस्कस किया। या प्राची प्लीज। I'm out of India for the 2 months, so can I submit the assignment by online means by requesting the respective study center or coordinator? Yeah, actually normally online submission is little bit issue because a person need to download it and many other things. It will be better if you send by the post, maybe Indian Post or Blue Dart, that kind of international things, which is assuring the delivery of the assignment to your study center or regional center. Okay sir, thank you. Yeah. और कोई सवाल? Yeah, I think we have done this induction center meeting, and all students are requested to study the books properly, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो एक एडल्ट मोटिवेटेड लर्नर की हिसाब से डिजाइन किया गया है। तो हम ये मानते हैं कि आप सब लोग एडल्ट है, मोटिवेटेड है, एंड यू विल डू दी थिंग्स। हमारा काम है आपको सपोर्ट करना। तो आपको जो जैसे सपोर्ट चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप बहुत सारा चीज लिखना शुरू करते हैं तो मैं उसको रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ करना। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यू हैव टू बी वेरी मच एकेडमिकली ओरिएंटेड, अदरवाइज उसका जो ऑथेंटिसिटी है ना वो गायब हो जाता है। बहुत सारा लोग गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज डालने लगते हैं होली के टाइम में, फिर होली का मैसेज डालने लग जाएगा, फिर फेस्टिवल आएगा तो दिवाली मैसेज डालने लग जाएगा। हाँ, बहुत सारा लोग यूट्यूब फॉरवर्ड करने लग जाएगा, मैंने ये देखा देखो। तो ऐसा मत करिए। जो इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको और आपकी ग्रुप को रिलेवेंट है वही लिखिए। अगर आप लोगों को कुछ इंटरपर्सनल कम्युनिकेट करना है, जैसे कि सारे दिल्ली वाले एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, वो अपनी ग्रुप बनाइए। जैसे कि जितने भी नागपुर में है, जितने भी हैदराबाद है, वो अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं, इसलिए मैंने इतना दिन कोई कमेंट नहीं किया। तो आप बनाइए और पर्सनली कम्युनिकेट करिए। अगर आप लोग आपस में करना है तो ग्रुप के बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। तो मेरे ख्याल से हम ये मीटिंग क्लोज करते हैं एंड वी विल स्टॉप। सर अगर पॉसिबल है तो, हाँ सर, कुछ स्टूडेंट्स का मतलब मैसेज है, अगर पॉसिबल है तो व्हाट्सएप ग्रुप का आप लिंक मतलब इसमें शेयर कर देंगे तो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी है। ग्रुप का एक मिनट अभी करता हूँ मैं, उसको पहले वो कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ। हेलो सर, मुझे एक क्वेश्चन